Hi, beautiful souls. Hope you all are doing well because I was not planning to shoot this message. Okay, my energies are not the best today, so I'm planning to take a break for my own self. Okay, energetically and everything. But I was brushing my teeth and I got this energy very strongly. Reflection, like not the energy, but I got the sentence. Okay, okay, self reflection, reflecting on past, something of the sort. So I know the current energy of द कलेक्टिव जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है. सो द करंट एनर्जी इज़ कि आप अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो इन अ गुड वे, इन अ नेगेटिव वे, आई डोंट नो. ओके, दैट विल सी मोर. बट लिटरली आई गॉट द आई गॉट द विजुअल. ठीक है, मतलब मुझे लिटरली व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ, मुझे लिटरली दो कार्ड्स की एनर्जी आई, दो कार्ड्स मुझे एग्जैक्ट दिखे एंड दोज आर दिस टू कार्ड्स. ओके, आप देख सकते हो सिमिलर है एंड मुझे ये स्ट्राइक भी नहीं हुआ था अभी तक दैट हाउ सिमिलर दिस टू कार्ड्स आर. Of course not completely similar, but just look at them. They have the similar vibe. Okay, so maybe you have the message. Of course you have the message from this deck, but ये tarot deck है and you have the message from this deck surely. But I got the literally same visuals. ये दो cards की images मुझे दिखे simultaneously, and I also got the message कि reflecting on past. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, जैसे कि आज मैं फील कर रही हूँ, आई ट्राई नॉट टू डू एनी रीडिंग्स. ओके, बिकॉज मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है. सो आज मेरी बहुत बात हो गई है एंड आई वॉज रियली फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. सो आई जस्ट फेल्ट नॉट टू डू दिस रीडिंग, मे बी राइट दिस मैसेज डाउन एंड गिव इट टू यू tomorrow when I'm in my best energy. But no, the energy was so strong that it just made me sit with the message. Okay, okay. So I also had this thing. I had done my skincare, I had done everything, and as I said, I had brushed my teeth also. So I don't know why I felt like putting on lipstick after doing everything. It's very weird. I'm wearing lipstick right now and it's very dark lipstick. Okay, it's not a mild toned lipstick, it's a very dark out there lipstick. The shade is very dark. So it's very weird energy. So मुझे ये sentence आया that reflecting on past, and these two cards came to my mind and I pulled these two cards out. मैंने बाकी deck को अभी तक touch नहीं किया है, but something about these two cards, because this is eight of swords and this is of course the card of reflection. Irony is, I don't know, ironing right now if that's even a word. Okay, but it's very weird when it comes to timings and it's very weird when it comes to certain things. And don't question energies. ठीक है, energies को question मत करिए, messages को question मत करिए, because there is no such thing as coincidence, guys. ठीक है, there is one thing is linked to another, second is linked to another. It is all divinely guided, it is all divinely planned. So never question energies like this. Okay, even if you don't believe in them, it's fine, but just don't, okay, just don't question them. So basically यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज निकल के आ रहा है, द करंट एनर्जी दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल. I'm not giving out the message right now, of course we'll check the message, but your current energy is something कि आप अपने पास्ट की कोई तो चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो. अभी वो चीज़ see my throat chakra is also, I'm not in my best self today because that's why I was not doing the reading, but it was very urgent and coming in very urgently. So as I'm saying this, I feel कि someone is getting nostalgic. अभी आप किसी को मिस कर सकते हो, किसी मेमोरी को मिस कर रहे हो, अपने पास सेल्फ को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पास सेल्फ के बारे में सोच रहे हो. समथिंग अबाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट. हो सकता है कि आप गिल्ट में हो, दैट यू आर थिंकिंग यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी बट ये चीज़ कर दी. बिकॉज अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज आई एम गेटिंग फ्रॉम ओवर हियर. एज आई सेड कि मैसेज में मुझे यही आया दैट रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट. नाउ इन व्हाट सिनेरियो रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट, एंड इज इट गुड और इज इट बैड? बट एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग मी कि आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो. ठीक है, आपका जो करंट सेल्फ है ना, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट सेल्फ. ओके, पास्ट में लाइक यू कुड सी दिस गर्ल इज ट्रैप्ड एंड इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बट दिस गर्ल ओवर हियर इज लुकिंग एट द मिरर वर्जन ऑफ हरसेल्फ, एंड दिस गर्ल इज फ्री, शी इज टोटली फ्री. शी ऑल्सो हैज स्वर्ड्स, एरोज ओवर हियर, एंड शी इज ट्राइंग टू वाटर दिस इमेज एज इफ शी इज ट्राइंग टू इरेज. मुझे ये एनर्जी आ रही है इरेज, क्योंकि दोनों जगह पे ना वाटर है. ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट ट्राइंग टू इरेज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, कि काश ये चीज़ हुई ना होती. ओह, माय नोज इज इचिंग नाउ. मे बी आई एम टैपिंग इन टू द करेक्ट एनर्जी. आई थिंक आपका कोई तो पास्ट का ऐसा इंसिडेंट है कलेक्टिव जो आपको हॉन्ट करता है, सॉर्ट ऑफ, जो आपको ट्रबल करता है. आप नहीं चाहते उस मेमोरी में रहना, आप नहीं चाहते उस मेमोरी. ओ, नाउ आई एम टैपिंग इनटू द एनर्जी. आप नहीं चाहते कि वो मेमोरी आपके सिस्टम का पार्ट रहे. आप नहीं चाहते उस मेमोरी को विजिट करना, रिविजिट करना. आप नहीं चाहते कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, या फिर जो भी किसी पर्सन की वजह से आपके साथ पास्ट में हुआ है, वट एवर दैट इंसिडेंट और दैट सिचुएशन और दैट पर्सन, एनी मेमोरी रिलेटेड टू दैट,
आपको वॉश आउट कर देनी है वो चीज़। आपको ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ बस मिट जाए, वो बस खत्म हो जाए, वो बस चली जाए वो चीज़। ना यू नो, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो क्या वो चीज़ है, क्या वो इंसिडेंट है, बट दिस एनर्जी इज वेरी प्रोमिनेंट एंड दिस इज द करंट एनर्जी। अगर ये करंट एनर्जी आपकी नहीं है, देन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द मैसेज फॉर यू, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, बट या दिस इज द एनर्जी कमिंग इन फॉर यू। बट वॉट इज द मैसेज फ्रॉम दिस एनर्जी नाउ, सिंस इसी डेक का मुझे विजुअल आया था, इसी डेक का ये कार्ड है, ओके, लाइक यू कुड सी, सो मैं यही डेक लेना चाहूँगी। वॉट अबाउट दिस एनर्जी? वॉट इज द मैसेज टू योर स्पिरिट गाइड्स? What is the message to your spirit guides? What is the message to your spirit guides? What is the message to your spirit guides? What is the message? That's why I don't like sitting over here, man. Just a second. Let's hope other cards don't fall, because I don't really want to now shift the place again and again. Ooh. Okay. Okay. So whatever incident ये है, ये बहुत डिफेंसिव कर देता है आपको, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कर देता है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी को रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड और योर टीनेज ईयर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, टेक ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग। बट ये जो इंसिडेंट है ना पर्टिकुलर, ये इतना आपका ट्रिगर पॉइंट बन चुका है फ्रॉम योर पास्ट, दैट व्हेनेवर समवन स्पीक्स अबाउट दिस इंसिडेंट, आपके सामने आप ट्रिगर हो जाते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा यू बिकम दिस पर्सन हु इज जस्ट रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड एंड हु इज रेडी टू फाइट द एंटायर वर्ल्ड, हु इज रेडी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये आपके रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपने अपनी लाइफ में आप जिनसे क्लोज हो, आपने उनके साथ कुछ ऐसा होते हुए देखा, दैट बिकेम योर ट्रिगर पॉइंट। बट ये एक ऐसी मेमोरी है ऑफ योर पास्ट जो आप मिटाना चाहते हो। इसकी वजह से यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, बट वेन एवर यू ट्राई टू सिट विद दिस मेमोरी, जब भी आप इसके साथ बैठने की कोशिश करते हो ना, यू जस्ट गेट ट्रिगर्ड, यू जस्ट गेट वेरी डिफेंसिव, यू जस्ट बिकम दिस काइंड ऑफ एंग्री पर्सन जिसका कुछ कंट्रोल ही नहीं अपने इमोशंस पे, ठीक है। लाइक आप एक ऐसे छोटे बच्चे बन जाते हो जो बहुत जिद्दी है। यू हैव ट्राई टू वर्क विद दिस एनर्जी, आपने इस चीज़ को हील करने की भी कोशिश की है, लेकिन जब भी आप इस मेमोरी के साथ बैठते हो, अपने पास्ट के उस इंसिडेंट की मेमोरी के साथ बैठते हो, आप ट्रिगर हो जाते हो एंड आप उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते। एंड दैट्स वाई ये जो मेमोरी है ना, ये आप एस्केप कर रहे हो इस मेमोरी से, बट सम वॉट यू आर नॉट एबल टू रिलीज इट इन अ वे दैट इज हेल्दी, ठीक है। लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। सारी रीडिंग ही वैसे आ रही है, आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज नाउ। सो जिनको भी वो चीज़ होती है कि कार्ड्स पहले से होते हैं एंड वो सारी चीज़ें, बट आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, यू हैव ट्राइड टू रियली हील दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू रियली वांट कि ये जो भी चीज़ है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, ये पास्ट की मेमोरी, ये अभी निकल जाए आपके सिस्टम से। बहुत यू हैव बीन वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव बीन वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ, yeah, there is a lot of disturbance in this reading also. Yeah, so you have been disturbed because of this particular thing. आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो इस सिचुएशन की वजह से, इस चीज़ की वजह से जो आपके पास का इंसिडेंट है। You have been really trying to heal this one, you have been really working hard to heal this one, ठीक है, मतलब really really trying hard. आई थिंक आपने कुछ कुछ लोगों के लिए अगेन एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपने किसी और से हेल्प ली है टू हील दिस वन पर्टिकुलर ट्रॉमा, लाइक अ थेरेपिस्ट और समवन हु इज अ हीलर, समवन हु इज अ रेकी हीलर, समवन हु इज अ आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ से दैट मे बी आपने किसी से एक्सटर्नल हेल्प ली है टू हील दिस पर्टिकुलर मेमोरी, ठीक है, क्योंकि इस मेमोरी की वजह से आपको बहुत स्लीपलेसनेस, नाइटमेयर इशूज, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे आप सोते हो या जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो, द फर्स्ट मेमोरी दैट कम्स टू यू, या फिर जो विजुअल सबसे पहले आता है, दैट इज ऑफ दिस पास्ट मेमोरी। सो ये जो भी है ना, आप वॉश आउट करना चाहते हो अपनी लाइफ से, आप इस चीज़ को रिलीज करना चाहते हो, आप इसके ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है फॉर सम रीज़न। इट इज स्टिल देयर इन योर सिस्टम सो फ्रेश कि आप उसको कितना भी रिलीज करने की कोशिश करो, कितना भी छोड़ने की कोशिश करो, आपके लिए वो एक ट्रिगर पॉइंट बन ही जाता है समहाउ, लाइक आप उस चीज़ से ट्रिगर हो ही जाते हो, आप उस चीज़ से अफेक्ट हो ही जाते हो। So if this is happening with you in current scenario, now I want to be seeing what solution we can get for you guys, okay? I really want to help you people. Nahi gira. Ooh, okay. Okay, where is this going? Let me pull out some more cards. What solution can we give to collective watching this? What solution can we give to the collective watching this? How can they deal with this situation? Oh, did I not just tell you? Yeah, it is affecting you very badly. आप देख सकते हो ना, इसके पीछे पूरा अंधेरा है. And this girl is really disturbed. How can we help the collective Deo Spirit team? How can we help? How can we help? Okay. We have the devil. End of the deck. Let me meditate on this first. Something about fresh start, ठीक है,
ओके, आई नो वेयर दिस इज गोइंग, बट मुझे इसको फ्रेम करना है। सी, अगर आपको पास्ट की वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है एंड आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो एंड इट इज स्टिल नॉट हेल्पिंग यू, यू हैव बीन ट्राइंग मेडिटेशन, यू हैव बीन ट्राइंग हीलिंग, लेकिन वो एक कोर मेमोरी आपकी लाइफ से जा ही नहीं रही है। So this is the message coming in from your spirit team, from your ancestors, from your divine angels, the divine you believe in, to create new memories. Okay. कोई तो एक हॉबी ढूंढिए आप, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोई तो एक हॉबी ढूंढिए, लाइक यू नो, आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। आई हैव नॉट रियली पुट आउट अ लॉट ऑफ आर्ट स्टफ। जो मैं आर्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा पुट आउट नहीं करती हूँ उन चीज़ों को, बिकॉज दैट आई फील इज फॉर माई ओन सेल्फ। सम आई पुट, सम आई डोंट, ओके। सो आई ऑल्सो क्रिएट दिस आर्ट, ओके। इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटरली समटाइम्स आई फील। अभी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, ऑफकोर्स बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं एंड एवरी वन इज रियली अ मास्टर, बट मुझे पर्सनली मैं अपनी केस बता रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ माई एनर्जी। एवरीबडी गोज थ्रू दिस काइंड ऑफ फेजेस, ठीक है। हर किसी का ट्रॉमा होता है, हर किसी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे वो हील करते हैं, अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी से। नाउ आई एम गिविंग यू दिस मैसेज बिकॉज माई सोल पर्पज इज समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई तोपी चीज़ हूँ या फिर मैं 24 घंटे एक ऐसे हेड स्पेस में रहती हूँ वेर इन आई एम वेरी सॉर्टेड एंड आई एम द ओनली राइट पर्सन। नो, आई डोंट लिव इन दैट डिल्यूजन। आई एम अ ह्यूमन, आई मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो आई हैव दिस काइंड ऑफ, like for example, I had this childhood dream of learning Kathak, लेकिन for some reason I was not able to fulfill my that childhood dream. तो वो चीज़ मेरे अंदर रह गई थी somewhat, that I want to, and now at this age when I am nearing 27, I have started learning Kathak, okay। and मेरे साथ जो सारे हैं वो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सेकंड थर्ड फर्स्ट में हैं। सो आई डोंट लुक लाइक अ स्टूडेंट, आई वॉज जज्ड दैट ओके आप कैसे स्टूडेंट हो सकते हो, बट आई फील दैट देर इज नो एज। सो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ पता है क्या, बिकॉज आई जेन्यूनली फील कि आपकी स्पिरिट टीम आपको ये बताना चाहती है दैट वट एवर मेमोरी आप जिस भी चीज़ से एस्केप करना चाहते हो ना, आप उससे एस्केप कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। दिस इज जो भी आपके साथ हुआ, जो भी मेमोरी आपको है, जो भी पास्ट की चीज़ है, दैट हैज़ मेड यू द करंट पर्सन यू आर, गुड बैड वट एवर, ओके। सो अभी क्या है, दैट इज डिस्टर्बिंग यू, दैट इज मेकिंग यू अग्रेसिव, दैट इज ट्रिगरिंग यू, दैट इज हॉन्टिंग यू, दैट इज रियली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस फॉर यू। केओस हो जाता है आपके माइंड में व्हेनेवर यू थिंक, कॉन्फर्मेशन वर्क ऑन दैट, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ दैट मेमोरी। सो यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम आपसे कहना चाहती है दैट जस्ट स्टार्ट फ्रेश। अभी स्टार्ट फ्रेश, यू कुड स्टार्ट परस्यूइंग अ हॉबी, यू कुड स्टार्ट परस्यूइंग इंटरेस्ट, स्टार्ट डूइंग थिंग्स जिससे आपके सोल को एक सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि आपके सोल को ना आप फोर्स मत करिए टू हील फ्रॉम दैट ट्रॉमा। व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ टू हील फ्रॉम समथिंग, इट डज नॉट वर्क आउट, बिकॉज वो अलाइनमेंट में नहीं होती चीज़ें। लेट इट हील ग्रेजुअली, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढिए, इट डज नॉट रियली हैव टू बी गुड, ओके। नोबडी इज जजिंग यू ओवर हियर। इफ यू वांटेड टू स्टार्ट सोशल मीडिया, if you wanted to paint, if you wanted to do craft, if you wanted to cook something, if you wanted to make something, if you wanted to do something in life, travel करना था, short trip लेना था, कुछ भी करना था, just do it, okay। because क्या हो रहा है ना, that memory is having the core in your soul, understand my point very carefully। वो जो मेमोरी आपके पास्ट की है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, उससे आप पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हो, बिकॉज दैट मेमोरी हैज बिकम द कोर। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद आपकी लाइफ एक मोनोटोनस सी जर्नी बन चुकी है। दैट्स वाई उस मेमोरी को सरपास करने के लिए कुछ भी अच्छा आपने अपने आप के लिए किया ही नहीं, ओके। आई एम सेंसिंग ओवर हियर लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ जस्ट दैट इनर जॉय जैसे आप बचपन में थे, जैसे व्हेन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, द काइंड ऑफ चाइल्ड यू वेर, जैसे आप बिंदास बोलते थे, अभी आप वैसे नहीं बोलते हो। आई थिंक देर इज समथिंग को रिलेटिव विथ यू बीइंग दैट चाइल्ड एंड अडल्ट। आपने वो इनर चाइल्ड कहीं आपका खो दिया है, ओके। वो एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही है जिससे आप पहले अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई एंड आपने सडनली वो हॉबी छोड़ दी, हो सकता है आपके बच्चे हो गए, हो सकता है आप यू नो ओल्ड एज में चले गए, हो सकता है आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग यू इन अ कैटेगरी समथिंग लाइक दैट, ओके। हूएवर इज वाचिंग इट, आई फील कि आपने अपना वो कनेक्ट छोड़ दिया इनर चाइल्ड के साथ, जो भी आपको इंटरेस्ट करता था ना, वो कनेक्ट आपका कहीं ना कहीं छूट गया है। एंड दैट इज वाई ये जो पर्टिकुलर मेमोरी है ऑफ योर पास्ट, ये मेमोरी आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, बार बार सता रही है, क्योंकि वो पावर आपने उस मेमोरी को दे के रखी है, ठीक है। आप किसके पास भी जाइए, किसी के पास भी जाइए, जिसके पास भी आप जाएंगे, आपका माइंड तो आपके कंट्रोल में है, किसी के और कंट्रोल में वो माइंड नहीं है। जब तक उस मेमोरी से आप अपने आप को डिटैच, और बहुत स्लोली, सी जितना हैवी ट्रॉमा होता है ना, उतनी ही लंबी हीलिंग होती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप हो गए, ठीक हो गए, सारी पास्ट की मेमोरीज चली गई। नो, यू हैव टू सिट विद इट, बट वाइल सिटिंग विद इट अपनी सारी सिचुएशन उसके अराउंड ही मत घुमाइए। जैसे आपके साथ हो रहा था, आप अभी तक अपनी लाइफ की सारी चीज़ें उसी अराउंड घुमा रहे हो, उसी के अराउंड सर्कल कर रहे हो, ओके। आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे बता रही है, जो एक इनर जॉय होता है ना, जो एक जेन्यून जॉय होता है, द जॉय टू फील हैप्पीनेस, द जॉय, जैसे एक बच्चे में वो एक इनर जॉय होता है। आप कभी भी किसी छोटे बच्चे को, जिसे बोलना नहीं आता, जिसने नया नया चलना सीखा है, ऐसे बच्चे से आप देखिए, दैट किड डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ।
दैट किड इज लिविंग इन द मोमेंट. सो वो एक लिव इन द मोमेंट वाली जो चीज़ है ना, उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप एक ऐसी एनर्जी में स्टेप इन हो जाओ वेर इन यू आर एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ. अपने आप को नए तरीके से जान रहे हो, अपने आप को एक नए तरीके से पहचान रहे हो, अपने आप को नए तरीके से देख रहे हो, नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना, नई चीज़ें करना. डोंट लुक अराउंड फॉर कंपनी. आप अपनी कंपनी बनिए. जो भी चीज़ें आपको करनी है, डोंट लुक अराउंड फॉर वैलिडेशन. यू डू दैट बिकॉज यू डिजर्व इट. क्योंकि वो जो कोर मेमोरी है ना, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अपने लाइफ में ऐसी मेमोरीज नहीं लेके आते, ऐसी चीज़ें नहीं लेके आते जो आपका अल्टीमेट डोपामाइन राइज करा दे, अल्टीमेटली आपका जो है वो जॉय इंक्रीज करा दे, अल्टीमेटली आपके इनर चाइल्ड को बोले दिस इज सेटिस्फैक्शन, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. आई एम नॉट सेइंग टू स्पेंड मनी, देयर इज अ डिफरेंस. आप दुनिया के करोड़ रुपए भी खर्च कर दो फिर भी खुश नहीं हो सकते, बट वहीं पे आप कुछ ना करके भी छोटी छोटी चीज़ें करके भी खुश हो सकते हो. बिकॉज योर इनर जॉय इज नॉट डिटरमाइंड बाय लग्जरी, इट इज डिटरमाइंड कि आपका सोल जेन्युइनली किस चीज़ से खुश होता है. सो यू नीड टू फाइंड समथिंग टू डाइवर्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस मेमोरी. यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ समथिंग. ओके, ये जो है ना, ये ऑलरेडी आपके अंदर है. आई एम सेंसिंग दिस थिंग, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट वट एवर थिंग जो आपको इस मेमोरी से हटा सकती है ना, इस मेमोरी से आपको एक कॉर्डियल इसमें एक्सेप्टेंस में, ये मेमोरी को रिलीज करने में आपको जो भी चीज़ हेल्प कर सकती है, दैट इज एक्चुअली इनसाइड यू. बट आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो फॉर सम रीजन एंड आई डोंट नो व्हाट दैट रीजन इज, बट यू नो दैट फॉर द बेस्ट. ओके, सो यहाँ पे वो एक एनर्जी निकल के आ रही है, whoever is watching this, to not force these things on yourself, to not force. ठीक है, कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि कपड़े बनाने का शौक है, कपड़े न्यू स्टफ. आई थिंक यहाँ पे जो है ना, बहुत एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंड विद द हेल्प ऑफ डूइंग समथिंग आपको वो चीज़ करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन का अगर आप कर रहे हो तो वो हीलिंग आ जाएगी. नहीं, आपको एक्सटर्नली भी कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो आपको अंदर से पता है दैट दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी. जस्ट लाइक आई सेड कि मुझे बचपन से हमेशा से कथक सीखना था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस मुझे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि मैं सीख पाऊँ. लेकिन एट दिस एज आई एम विलिंग टू गो एंड लर्न दैट हॉबी. ऐसे नहीं कि मुझे 10 लोगों को दिखाना है कि देखो मुझे आता है. नहीं, आई माइट बी द मोस्ट टेरेबल कथक डांसर, बट एटलीस्ट आई एम फुलफिलिंग माई इनर चाइल्ड ड्रीम. तो उस ट्रॉमा से आपको हटने के लिए, उन चीज़ों से, उस पर्टिकुलर मेमोरी से जो पेनफुल है आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त, उस चीज़ से हटने के लिए यू हैव टू गो टुवर्ड्स समथिंग जो ऑलरेडी आपके अंदर है. ऑलरेडी आपके अंदर है. उस चीज़ से आपको बचपन में भी हेल्प मिलती थी. हो सकता है कुछ कुछ लोगों को क्रिकेट खेल के मिलती थी, स्पोर्ट्स खेल के मिलती थी, बट नाउ सडनली यू हैव स्टॉप डूइंग दैट. इट कुड बी रियली स्मॉल बट इट वॉज रियली सिग्निफिकेंट फॉर यू. ओके, बट वो चीज़ जो है ना, वो एक्टिवली आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू डिटैच इन अ हेल्दी वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेमोरी. ओके, बट और देखते हैं 2 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक, क्योंकि इसमें से भी कार्ड की एनर्जी आई थी. सो what more, dear angels, please guide the collective watching this. What message? Okay, I said 2 cards and the 2 cards are here. We have these 2 cards. Just look at this woman. Abhi I don't care if you're a man watching this reading, just take it, this is gender neutral. Okay, but ये कैसे खड़ी है on the top of the mountain in such a victorious way. Now she is not looking down कि यार कितनी मेहनत करके मैं चढ़ी. No, she is looking upwards. This speaks a lot about mindset. This speaks a lot about a lot of things. ये जो आपकी जर्नी है ना, दिस इज योर पास्ट मेमोरी. इसे पार करके जब आप यहाँ पे आओगे, जो आपने ऑलरेडी किया है, आप अपनी मेमोरी में उस चीज़ को अलाइव रख के आप उस चीज़ को रिलीव कर रहे हो, बार बार रिलीव कर रहे हो, बार बार उन चीज़ों के थ्रू जा रहे हो. जबकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है, एक बार स्ट्रगल हो चुका है, बट आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच के यू आर पुटिंग योर सेल्फ थ्रू दैट पेन एंड यू नो ऑल दिस शिट. क्योंकि आपने सारी चीज़ें कर ली है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट फिर भी वो नहीं हो पा रहा है. सो यहाँ पे वो एक एनर्जी है दैट टू लुक अपवर्ड्स, okay. Your challenges are opportunities for growth and the next card we have is the lighthouse. अभी आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट है. If you could just see, बाहर भी लाइट है, अंदर भी लाइट है. It is shining from within and this is who you are, you guys. You're so beautiful and you're so powerful. You don't know it. That is the problem. This is coming in from lack of self love, self acceptance, self worth issues. उस मेमोरी से जितना आप फोर्स मत करिए कि यार रिलीज हो जा, हील हो जा, 10 लोगों के पास जाना, 10 लोगों से 10 चीज़ें करवाना. डोंट डू दैट. जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे. 10 मिनट के लिए बैठिए. लेट दैट मेमोरी कम, इट विल कम. क्योंकि आपने उस मेमोरी को पावर देके रखी है दैट इट कैन हॉन्ट यू, इट कैन ट्रबल यू, सो इट विल कम टू ट्रबल यू. सो 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, 2 दिन आप गुस्से में उठ जाओगे, 2 दिन आप रोगे, फूट फूट के रोगे. इट इज ओके, इट इज टोटली ओके, बट सिट एवरी डे 10 मिनट्स विद दैट मेमोरी. On 10th day, on 12th day, you will find some progress. You will see कि यार मुझे अब उतना गुस्सा नहीं आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा है. 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्तों बाद you will realize that I'm okay with this memory. This is my part. I'm okay with it.
जितना भी टाइम लगे, गिव इट टू योर सेल्फ. डोंट रश हीलिंग, डोंट रश सच थिंग्स. इट कम्स विद एक्सेप्टेंस एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेशेंस. सो ये मैसेज आ रहा है गाइज आपके लिए, ठीक है. मैं यहाँ पे मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है. सो दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग इन फॉर योर गाइज. अगर आपका ऐसा कोई भी ट्रॉमा है जो बार बार ट्रिगर हो रहा है पास्ट का, ऐसी कोई भी चीज़ है, मेमोरी है जो आपको बार बार नेगेटिव कर रही है, हॉन्ट कर रही है, यू नो, आप कितना भी उस पर काम कर लो, नहीं हो पा रही है वो चीज़ें, हील ही नहीं हो पा रही है. सो दिस आर द टू प्रोमिनेंट मैसेजेस फ्रॉम दिस रीडिंग. फर्स्ट, एक कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढिए जिससे आप एक्सप्रेस कर पाए. कुछ कुछ लोग बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा राइटअप करते हैं. हर किसी में एक क्रिएटिव नज है, हर किसी में एक क्रिएटिव टैलेंट है. हम अपने मोनोटोनस लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसको हम भूल जाते हैं. एज वी बिकम अडल्ट वी फॉरगेट कि यार हमारा इनर चाइल्ड तो इन्हीं चीज़ों से खुश होता है. ओके, सो डू दोज थिंग्स, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स. ओके. सेकेंडली, what I'm getting over here is to sit with that memory. ठीक है, टू सिट विद दैट मेमोरी डेली फॉर 5 minutes, फॉर 10 minutes, टू सिट विद दैट मेमोरी डेली. ओके, कि यू नो आप उस मेमोरी के साथ. आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू सॉन्ग्स. कुछ कुछ लोगों के मूड सॉन्ग्स होते हैं. सो यू कुड ऑल्सो सिट विद सम ट्यून, सम साउंड, बिकॉज साउंड ऑल्सो हैव अ वेरी हीलिंग इफेक्ट, यू गाइज. नॉट द लाउड वंस, ऑफकोर्स लाउड वंस भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट यू नो सम मेडिटेशनल साउंड्स ऑल्सो दे कुड बी रियली हेल्पफुल. या, सो जस्ट स्टार्ट सिटिंग विद दैट मेमोरी. आज तक आपने सारी चीज़ें की टू एस्केप फ्रॉम दैट मेमोरी. नाउ जस्ट ट्राई सिटिंग विद दैट मेमोरी. 2 days, 3 days, 4 days, दैट मेमोरी विल ट्रबल यू. बट वंस यू गेट एक्वेंटेड कि ये तो मेरा ही पार्ट है, ये जो भी है इसकी वजह से आज मैं हूँ, ये जो भी हुआ इसकी वजह से आज मैं हूँ, तो यहाँ से आगे ही जाना है. व्हेन दैट स्टार्ट्स एंटरिंग यू, व्हेन दैट माइंडसेट स्टार्ट्स एंटरिंग यू, आपको ये समझ में आएगा यू हैव टेकन द पावर बैक. अभी क्या है, यू हैव गिवन द पावर टू दैट मेमोरी टू ट्रबल यू. बट व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव टेकन द पावर बैक, you will feel way more strong, way more strong. Okay, so that is it for the message, you guys. Stop reflecting and अपने आप को परेशान करना बंद करिए. You deserve a lot. Tight hug I'm giving you all, warm hug I'm giving you all, and the light is within you. Light is within you. Okay, so अपने आप को force मत करिए, ठीक है. Slow is good, but if it is steady it is really good. Okay, so slow हो रहा है but अगर steady है then आपका ही फायदा है इसमें, ठीक है. Stable है तो आपका ही फायदा है इसमें. रश करके आपको पता चला कि आपने रश कर लिया, सरफेस लेवल पे 6 महीने आपको अच्छा लग रहा है, वो मेमोरी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बट अगेन 7वें महीने दैट मेमोरी इज बैक. सो डोंट डू दैट. गिव योर सेल्फ, टेक 1 day at a time, take it slow. It is fine, it is you and you deserve a lot of love. Okay, so this is it for the reading, you guys. ये 2 मैसेजेस आ रहे थे इसमें से आपके लिए. अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली then receive it with positivity. I'll be seeing you all with my next message very very soon. Until then, take care, you guys. Sending lots and lots of love, healing and positivity your way, and bye bye.